ترکیہ کے وزیر خارجہ اور وزیر دفاع رات گئے پاکستان آمد. حقان سرکاری دورے پر پاکستان آئے ہیں. آج اہم ترین ملاقاتیں ہوں گی. اسرائیلی فوج کا شمالی لبنان کے شہر طرابلس پر حملہ. حماس کے اہم رہنما کو نشانہ بنانے کا دعویٰ. اسرائیل کی جانب سے حملے کی مزید تفصیلات فراہم نہیں کی گئیں. لبنانی سیکیورٹی ذرائع نے اسرائیلی حملے میں 3 افراد جاں بحق ہونے کی تصدیق کر دی. یمن کی فوج نے بحری جہاز پر حملے کی ویڈیو جاری کر دی. گزشتہ روز بحیرہ احمر میں میجک سیز نامی بحری جہاز کو غرق کر دیا تھا. مال بردار بحری جہاز اسرائیل جا رہا تھا. اسرائیلی جارحیت کے خاتمے تک فلسطینیوں کی حمایت جاری رکھنے کا بھی اعلان. غزہ کے لیے امداد لے جانے والی کشتی میڈلن کو ہائی جیک کرنے پر اسپین کی عدالت نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے خلاف جنگی جرائم کی تحقیقات کا آغاز کر دیا. جہاز کے میکینک نے اسپین کی عدالت میں اسرائیل کے خلاف جنگی جرائم کی شکایت درج کرائی تھی. گزشتہ ماہ صہیونی حکومت نے فریڈم فلوٹیلا کولیشن کی کشتی کو قبضے میں لینے کے بعد غزہ میں امداد کی فراہمی کی کوشش کو سبوتاژ کر دیا تھا. امریکہ اور اسرائیل کا تباہ شدہ رفح پر نئی انسانی بستی بنانے کا پلان. فلسطینیوں کو ان کے ملک سے بے دخل کیا جائے گا. دوسرے ممالک لے جا کر بسایا جائے گا. ہیومینیٹیرین ٹرانزٹ ایریاز بنانے کا بھی پلان. امریکی صدر ٹرمپ اور نیتن یاہو کی ملاقات. نیتن یاہو نے کہا کہ فلسطین کو کبھی قبول نہیں کریں گے. ٹرمپ نے کہا ایران کی تنصیبات کو مکمل تباہ کر دیا. وہ بم استعمال کیے جو آج تک دنیا نے نہیں دیکھے. اسرائیل اور امریکہ کو بڑی فتح ملی. ایران میں رجیم چینج کا فیصلہ وہاں کے عوام کریں گے. غزہ میں صہیونی دہشت گردی جاری. اسرائیلی نسل کشی اور جارحیت نے گزشتہ روز مزید 67 فلسطینی شہید. منگل کی صبح سے جاری حملوں میں شہداء کی تعداد 30 ہو گئی. درجنوں زخمی. شمالی غزہ میں فلسطینی مزاحمتی تنظیم سے جھڑپ کے دوران 5 اسرائیلی فوجی مارے گئے. 14 زخمی ہوئے. قطر میں حماس اور اسرائیل کے درمیان غزہ میں جنگ بندی کے لیے بالواسطہ مذاکرات کا تیسرا دور بلا نتیجہ ختم. عالمی فوجداری عدالت نے طالبان رہنماؤں کے وارنٹ جاری کر دیے. خواتین کے خلاف جبری اقدامات پر طالبان رہنماؤں کے وارنٹ جاری کیے گئے. افغان عبوری حکومت کے سپریم لیڈر ہیبت اللہ اخوان زادہ نے چیف جسٹس عبدالحکیم حقانی کے وارنٹ جاری کیے گئے. ملک میں مونسون کی طوفانی بارشوں نے ایک بار پھر قیامت ڈھا دی. 48 گھنٹے میں بارش کے دوران مختلف حادثات میں 19 اموات. بلوچستان میں مونسون کی تازہ لہر 10 قیمتی جانیں نگل گئی. بلوچستان کے باعث اصلاح بارش اور سیلاب سے متاثر. کہیں مکان زمین بوس ہوئے تو کہیں ندی نالے بفر کر بستیاں بہا لے گئے. آوران، جھلمکسی، خزدار، موسیٰ خیل اور قلعہ سیف اللہ میں پانی گھروں میں داخل. ہری پور میں طوفانی بارش کے باعث لینڈ سلائیڈنگ. متعدد سڑکیں بند. این ڈی ایم اے نے اگلے 2 دنوں کے لیے شدید بارشوں اور ممکنہ سیلاب کا انتباہ جاری کر دیا. وزیر اعظم کی تمام اداروں کو چوکنا رہنے کی ہدایت. کراچی کے علاقے ڈیفنس فیز 6 کے فلیٹ سے اداکارہ کی 1 مہینے پرانی لاش ملی. لاش کی شناخت حمیرہ اصغر علی کے نام سے کی گئی. پولیس کے مطابق اداکارہ فلیٹ میں گزشتہ 7 برس سے رہائش پذیر تھیں. ماڈل نے 2024 سے کرایہ نہیں دیا تھا جس پر مالک مکان نے سی بی سی میں کیس کیا ہوا تھا. گزشتہ روز بیلف آیا تو لاش دیکھی. پہلے پلرز ٹوٹے. گیرج میں موجود لوگوں نے آوازیں سنی. پھر لوگ بھاگ گئے. جو اندر رہ گئے وہ پھنس گئے. 5 منٹ بعد عمارت گر گئی. لیاری بغدادی میں عمارت گرنے سے پہلے کی فوٹیج جی ٹی وی نیوز نے حاصل کر لی. عمارت کے نیچے بہت سے رکشے موجود تھے. عمارت کے 20 مکانات میں سے کچھ لوگ ہی عمارت سے باہر نکلنے میں کامیاب ہوئے. علاقہ مکین عمارت گرنے سے قبل متعدد جھٹکوں کی بات کرتے رہے ہیں. کراچی میں سانحہ لیاری کے بعد مخدوش عمارتوں کے خلاف آپریشن تیز. 51 انتہائی خستہ عمارتوں میں سے
11 کو खाली करवा लिया गया। कई को मिसमार करने का अमल जारी। लियारी के दर्जनों खानदान सड़कों पर आ गए। सामान निकालने का भी मौका नहीं दिया गया। मकीन दर बदर हुकूमत ने मुतालबा मुतबादिल दयाना ही आरजी पनाह फराहम की। जिन्हें उम्रें लगाकर एक छत मिली, आज वही छत उनके सरों से छिन गई। नहीं पूछा कि हम लोग कहाँ गए, या मर गए, या जिंदा है, या किधर है। लियारी में बिल्डिंग के इन्हदाम की तहकीकात के लिए 5 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई। कमिश्नर कराची तहकीकाती कमेटी के चेयरमैन मुकर्रर। कमेटी इमारतों के गिरने की वजूहात और जिम्मेदारों से मुतालिक सिफारिशात पेश करेगी। एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ने तहकीकाती कमेटी को मुस्तरद कर दिया। चेयरमैन आबाद का कहना है कमेटी में स्टेक होल्डर्स को शामिल किया जाए। आबाद ने सूबे में 700 से ज़्यादा खतरनाक और मखदूश इमारतों की तामीर नौ का फार्मूला भी पेश कर दिया। हमने एक जामे मंसूबा दिया है इन 700 बिल्डिंगों के लिए, और मेरे ख्याल में अगर उस पर अमल दरामद करें तो ये मसले से हम निकल सकते हैं। बिल्डर सिंध में वो है जो आबाद का मेंबर है, जिसके पास बिल्डिंग कंट्रोल से बिल्डर लाइसेंस है। ये जो लोग काम कर रहे हैं ये क्रिमिनल्स हैं, माफिया हैं। एंटी टेररिज्म कोर्ट्स के में इनका आप केस फाइल करें अंडर दोज लॉ। हुकूमत के लिए मुमकिन नहीं मखदूश इमारतों के तमाम मकीनों को रिहाइश फराहम करे। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने बता दिया। कहते हैं हुकूमत दस्तयाब वसाइल में खानदानों को आरजी मुतबादिल रिहाइश दे सकती है। सूबे में 740 इमारतें मखदूश हैं। 51 इंतहाई ख़तरनाक इमारतों में से 11 खाली करवा ली गई। दीगर इमारतों को भी खाली करवाया जा रहा है। ये साहनिया ऐसा नहीं है जिसकी अल्फाजों में आप मजम्मत कर सकें। मैं ये समझता हूँ कि चेहरे बदलने से निज़ाम ठीक नहीं हो। चीफ मिनिस्टर साहब ने जो कमेटी बनाई है मैं उसे खुशाइन करार देता हूँ। हम इस पे कोई सियासत नहीं करेंगे। इनका ये बिल्डिंग में नुकसान हुआ है। मेरी अभी स्मार्ट सिटी के जो हमारे बिल्डर हैं उनसे, डेवलपर से मेरी बात हुई है और मैंने उनसे ये दरख्वास्त की है कि जितने इस मखदूश बिल्डिंग के लवाहिकीन बचे हैं उनके लिए हम 80-80 गज के प्लॉट का ऐलान। गवर्नर सिंध का लियारी सानहे के मुतासिरीन के लिए बड़ा ऐलान। मरने वालों के लवाहिकीन को 80-80 गज के प्लॉट दिए जाएंगे। मीडिया से गुफ्तगू में सिंध हुकूमत पर भी बड़ी तनकीद। बोले गुज़िश्ता 20 साल में सिंध हुकूमत ने किसी रिहायशी मंसूबे में तरक्याती काम मुकम्मल नहीं किया। SBCA के सरबराह का चेहरा बदलने से कुछ नहीं होगा, सिस्टम को तब्दील करना होगा। मुल्क में चीनी की दरामद और बरामद का खेल। चीनी की कीमत कंट्रोल करने के लिए वफाकी हुकूमत का बड़ा फैसला। 5 लाख टन चीनी दरामद करने की मंजूरी दे दी। तमाम इंतजामात मुकम्मल, फौरी अमल दरामद शुरू किया जाएगा। वजारत ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ की वजाहत। कहा इक़दाम का मकसद चीनी की कीमतों में इस्तेहकाम लाना है। दरामद हुकूमती शोबे के ज़रिए की होगी। इसहाक़ की ज़ेर सदारत खुसूसी कमेटी इजलास। चीनी की कीमतों में इस्तेहकाम और सारिफीन के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के हुकूमती अज़्म का आया था। तहरीक के ऊपर, और उन्होंने कहा है कि ये तहरीक की पीक जो है 5 अगस्त को होनी चाहिए और शुरू भी हो जानी चाहिए, और इसकी पीक 5 अगस्त को होनी चाहिए जिस दिन 2 साल हो जाएंगे इमरान खान की कैद। तहरीक इंसाफ का 5 अगस्त से एहतजाजी तहरीक शुरू करने का ऐलान। बानी PTI की हमशीरा अलीमा खान ने अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा बानी PTI के बेटे कासिम और सुलेमान भी तहरीक में शामिल होना चाहते हैं। बानी PTI के बेटों की बर्दाश्त खत्म हो चुकी है। नौरीन और उज़मा की बानी से मुलाकात हुई। बानी ने पैगाम दिया रूल ऑफ लॉ और जमहूरियत के लिए निकलना होगा। बैरिस्टर गौहर खान की अडियाला जेल रावलपिंडी में बानी PTI से मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। बैरिस्टर गौहर ने एहतजाज में शिरकत ना करने पर लोगों को पार्टी से निकालने की हिदायत पर नजरसानी की दरख्वास्त कर दी। बानी PTI को बताया मौजूदा हालात में क़यादत के बारे सख्त पैगामात मुनासिब नहीं। बानी PTI ने कोई हतमी जवाब नहीं दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा अगर हुकूमत संजीदा है तो पहले कोई मुस्बत इक़दामात करे। तहरीक चलाना हमारा आईनी हक है।
मुझे मुसाफिया करते हुए उन्होंने ज़रूर ये कहा था और उनका गुड जस्चर था, उनका ये था कि जी हमें बात करनी चाहिए, हमारे साथ नहीं तो स्पीकर के ऑफिस को आप यूटिलाइज़ करें। मैंने इंशाल्लाह ज़रूर कहा था। उसके बाद मेरे खान साहब से मुलाकात नहीं हुई। खान साहब ने पहले इसको रिजेक्ट कर दिया था, द रीज़न बीइंग कि एक हुकूमत के पास कोई इख्तियार नहीं है, दूसरी हुकूमत हमारा एक्सेस भी इंश्योर नहीं कर सकती, तीसरा अगर हुकूमत आपके साथ वो जिनवन है, ऑनेस्ट है और सीरियसली ये श्योर करना चाहते हैं कि जी हम आगे करें तो कुछ पॉजिटिव स्टेप लेने चाहिए। इस्लामाबाद के जुडिशल मजिस्ट्रेट अब्बास शाह का 27 यूट्यूब चैनल बंद करने का हुक्म। अदालत ने 2 सफ़ात पर मुश्तमिल हुक्मनामा जारी कर दिया। फाजिल जज ने दरख्वास्त मंजूर करते हुए यूट्यूब चैनल ब्लॉक करने का हुक्म दे दिया। हुक्मनामे के मुताबिक FIA की जानिब से शवाहिद के अदालत मुतमईन कानून के मुताबिक कार्रवाई कर सकते हैं। हवाला हुंडी, मनी लॉन्ड्रिंग, नॉन कस्टम एशिया के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत FIA कराची जोन में अहम इजलास। कहा हवाला हुंडी में मुलव्विस बड़े बड़े लोगों पर हाथ डाला जाए, किसी का दबाव कबूल ना किया जाए। नॉन कस्टम मसनूआत और जाली दवाओं का कारोबार किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मकरूह धंधे में मुलव्विस लोगों की असल जगह जेल है। पाक अफगानिस्तान सरहदी इलाके तहसील लुई मामूद में दहशतगर्दों की दरअंदाजी की कोशिश। सिक्योरिटी फोर्सेस की दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई, 8 दहशतगर्द हलाक। सिक्योरिटी फोर्सेस ने तहसील लुई मामूद में कार्रवाई की जिसमें सरहद से दाखिल होने की कोशिश करने वाले 8 दहशतगर्द मारे गए। लुई मामूद के दाखिली और खारिजी रास्तों पर सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। लाहौर के इलाके शाहदरा में कम उम्र ड्राइवर की कार की टक्कर से नौजवान की हलाकत का केस। कम उम्र ड्राइवर जुडिशल मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश। अदालत ने मुलजिम को 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। अदालत का मुलजिम को 12 जुलाई को दोबारा पेश करने का हुक्म। चीन के दिफाई वफ्द का एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का दौरा। ISPR के मुताबिक चीनी दिफाई वफ्द के एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी और बाहमी ताउन पर बातचीत। एयर पावर और ऑपरेशनल राब्तों के उमूर ज़ेर गौर आए। एयर चीफ ने कहा है कि पाकिस्तान चीन के बाहमी एतमाद पर मबनी तारीखी ताल्लुकात हैं। चीनी दिफाई वफ्द ने पाक फ़िज़ाइया के ऑपरेशनल तैयारियों और जदीद सलाहियतों को सराहा। बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज के लिए 15 रुकनी कौमी क्रिकेट स्क्वाड का ऐलान। सलमान अली आगा कप्तान, फ़खर जमान, साइम अयूब, अबरार अहमद, फ़हीम अशरफ, अहमद दानियाल शामिल। हसन नवाज, हुसैन तलत, खुशदिल शाह, अब्बास आफरीदी, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज, साहिबजादा फरहान, सलमान मिर्ज़ा, सुफियान मुकीम भी स्क्वाड का हिस्सा। 3 T20 मैचेस 20 से 24 जुलाई तक ढाका में खेले जाएंगे। अंडर 18 हॉकी एशिया कप में पाकिस्तान की मुसलसल तीसरी कामयाबी। बांग्लादेश को 3 के मुकाबले में 6 गोल से शिकस्त। कौमी टीम 9 पॉइंट्स के साथ ग्रुप में टॉप पोजीशन पर आ गई। पाकिस्तान आज चीन के खिलाफ अपना मैच खेलेगा। और माजी की मारूफ अदाकारा ज़हीन ताहिरा को पिछड़े 6 साल बीत गए। ज़हीन ताहिरा कई दहाइयों तक फ़न अदाकारी से मुंसलिक रहीं और 700 से ज़ायद ड्रामों में काम किया। कई मकबूल ड्रामों के किरदारों से अपनी पहचान बनाई। ज़हीन ताहिरा को 2013 में तमगा इम्तियाज़ से भी नवाजा गया।